आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिखेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. वी विल लर्न टुडे ग्राफ. वी विल लर्न टुडे वेरियस ग्राफ. ओके, लाइक पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. आज हम बहुत तरीके के ग्राफ को देखेंगे, स्टडी करेंगे उनको. ठीक है, सो लेट्स सी फर्स्ट वन. वी विल सी द पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में हम कुछ ग्राफ बनाएंगे और देखेंगे कि उस ग्राफ से हम क्या डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, फाइन. तो पोजीशन टाइम ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल दैट दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज ओरिजिन 10, 20, 30, 40, 50, 60 and this is 70 and unit is meter. This is the distance or you can say the positions. Okay, now if suppose there is a car or you can say any object. For example, चलो कार ले लेते हैं. If this is a car, right now the position of the car is at 30 meter from the reference point, that is origin. Origin से कार की पोजीशन कितनी है? 30 मीटर पे है. ठीक है. The velocity of the car is 0 meter per second, means the car is at rest. So position time graph में हम सबसे पहला ग्राफ क्या पढ़ेंगे? When an object is at rest. When an object is at rest. जब अभी हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तब हमारी ग्राफ क्या होगी? ओके, सो लेट्स सी. पहले टेबल बना लेते हैं हम लोग. लाइक सी हियर, if suppose this is a table, this is a time and this is the position. Right now the time is 0 second, the position is 30. After time 1 second the position is 30. After time 2 second the position is 30. After 3 second position 30. After 4 second position 30. Means car is not changing the position. और यही रेस्ट की डेफिनेशन होती है. Are you getting? हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इस चैप्टर की. क्लियर? If a body does not change its position related to some frame of reference, then that body is said to be in rest. Clear? तो यहाँ पर ये body अपनी position नहीं बदल रहा है, तो इसके लिए body को हम लोग क्या बोलेंगे? Rest पे. So we will plot this graph. On y-axis I will take the position and on x-axis I will take the time. So the time is 0, 1, 2, 3 and 4. What will be the positions? 10, 20, 30, 40 and so on. 0 पे कितना है? 30. So I'll mark it over here. 1 पे कितना है? 30. So I'll mark it over here. 2, 30. 3 पे भी 30 है. 4 पे भी 30 है. ठीक है? So join them. You will get a straight line like this. A line which is parallel to the x-axis. Okay? A line which is parallel to the x-axis. अभी हमें पता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ से हम अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. मैंने आपको बताया था ये स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ. दिस इज द वेलोसिटी. सो इफ यू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ओके, so what will be the slope of this line? Let's take any 2 points to calculate the slope. Here I will take, this is 4, 30 and this point, this one, it's 0, 30. Correct? So the slope formula, we know that y2 minus y1 upon x2 minus x1. So what is the value of y2? 30. Value of y1? 30. The value of x2? 4. The value of x1? 0. So the velocity is 0 meter per second, and this what we took, velocity is 0 meter per second. Clear? So if the question asked how to find out the velocity from the position time graph, तो उस ग्राफ की जो लाइन होगी उसका स्लोप निकाल लो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी. करेक्ट? फाइन. ओके, स्लोप निकालने का एक और फॉर्मूला भी है, दैट स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा. व्हाट इज थीटा? Theta is the angle between line and x-axis. Theta is the angle between line and x-axis. Okay. Remember, यहाँ पर if these two lines are parallel,
So what is the angle between them? Angle between them is 0. So the value of tan 0 is 0. So this is a shortcut formula. अगर आपको कभी एंगल दिया होगा तो हम डायरेक्ट स्लोप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ठीक है, फाइन. सो ये हमने फर्स्ट पार्ट देखा इसका. नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पार्ट. लेट्स सी द सेकेंड पार्ट. Right now when an object is moving with uniform speed, चलो अभी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है. तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए मैंने यहाँ पर कितना ले लिया. फॉर एग्जाम्पल द वेलोसिटी और स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है, स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड इन द राइट डायरेक्शन. सो इफ यू विल सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन, अभी मोशन स्टार्ट होने को है तो 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन 30 होगी. आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन. ओके, मीन्स व्हाट दिस ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन बाय अ 10 मीटर इन एवरी 1 सेकेंड. इन एवरी 1 सेकेंड ये जो ऑब्जेक्ट है हर एक सेकेंड में अपनी पोजीशन 10 मीटर से बदलेगा. आर यू गेटिंग? सो 0 सेकेंड पे अगर 30 मीटर पे तो आफ्टर 1 सेकेंड कहां पर होगा 40, आफ्टर 2 सेकेंड 50, आफ्टर 3 सेकेंड 60, आफ्टर 4 सेकेंड 70. In every 1 second, it changes its position by 10 meters. Clear? Okay. Now we will try to plot this graph. चलो इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं हम. This is the time. This is the position. 0, 1, 2, 3, 4. And this is 10, 20, 30, 40, 50, 60 and this one is 70. ठीक है, this is the position. So 0 पे कितना है 30, फाइन. 1 पे 40, 2 पे 50, 3 पे 60, 4 पे 70. Clear? When you join this, you will get a straight line like this. ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा हमारा प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है, इसके लिए पॉइंट्स ऊपर नहीं जा रहे. बट व्हेन यू प्लॉट ऑन अ प्रॉपर ग्राफ यू विल फाइंड दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, अभी अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालना है तो कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो और इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर लो. फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज 4,70 and this one is 0,30. So taking the slope is equals to y2 minus y1, that is 70 minus 30 upon x2 minus x1, 4 minus 0. So it will be 40 upon 4 cancel out, so it will be what 10 meter per second. यही वेलोसिटी दी थी हमें. सिंपल, फाइन. सो ये हमें दूसरा ग्राफ देखा. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड ग्राफ. इन द थर्ड ग्राफ, सपोज नाउ बॉडी इज मूविंग विथ uniform acceleration, not uniform speed. Right now the body is moving with uniform acceleration. The body is moving with uniform acceleration. ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए फॉर एग्जांपल ये जो आपका बॉडी है ये यहाँ पर नहीं है, या ये जो बॉडी है मैं यहाँ पर ये भी रफ कर देता हूँ क्योंकि ये सब वैल्यूज भी बदलने वाली है. ओके, सपोज राइट नाउ दैट योर बॉडी इज एट ओवर हियर. दिस इज द बॉडी. इट्स मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सबसे पहले हम टेबल फिलअप करेंगे, उसके बाद ग्राफ देखेंगे. लिसन वेरी केयरफुली नाउ. Okay, we will use the second kinematical equation, that is S is equals to ut plus half at square. I will say that the initial velocity of the body is 0 meter per second. Clear? Now suppose if right now the position of the body is x naught, after 1 second body comes to the new position. Okay, मैंने randomly लिया है. Body comes to the new position, say that this new position is x.
So the displacement of the body, that is S, I will say that the displacement S is nothing but x minus x naught. Clear? Displacement S is nothing but x में से x naught को हटा दो. Clear? Okay, so this is the displacement. चलो अगर आपको ये नहीं समझा है तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ यहाँ पर. Let's rub this part. Okay. For example, initially the body is at this position. मतलब मान लो थोड़ी देर थी, body यहाँ पर है. So I will say that right now the position of the body is x naught. After some time, body comes over here. So the position of the body is x. So what is the displacement? This is the displacement. How will get the displacement? X minus x naught. तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है. X minus x naught. This is the displacement we have. इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0. सो हम इनिशियल वेलोसिटी की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर. सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू x नॉट प्लस हाफ AT स्क्वायर. ये हमारा फॉर्मूला बना फॉर पोजिशन. क्लियर? सो इनिशियली हमने पोजिशन क्या माना है? 0 फॉर दिस कार. आई एम टॉकिंग अबाउट द कार. सो इनिशियल पोजिशन ऑफ द कार इज 0. To avoid the confusion, I will rub this. मैंने इस बॉडी का पोजीशन नहीं माना है, मैंने कार की इनिशियल पोजीशन मानी है. ठीक है, तो कार का इनिशियल पोजीशन कितना है? 0. एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम कितना है? टाइम चेंज होते जाएगा. लाइक दिस इज द टाइम इज अ वेरिएबल. ओके, फाइन. So when you put this equation for time t is equal to 0 second, x naught is 0, time is also 0, so x will be 0. 0. For t is equals to 1 second, x is equals to x naught value 0 plus half AT square. Clear? अच्छा, x naught हमेशा 0 होगा तो हम सीधा इसी फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे वैल्यूज को. क्लियर? ओके. सो एक्सेलरेशन कितना है हमारा? 10. सो हाफ इंटू 10, द वैल्यू ऑफ टाइम 1, सो 1 का स्क्वायर, 1 जा 5 जा, सो 5 इंटू 1 स्क्वायर विल बी 5. सो द न्यू पोजिशन इज 5. ओके, फाइन. नाउ सी हियर x इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर है ना हमारे पास. x इज इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर. a का वैल्यू कितना है? 10. सो हाफ इंटू 10 t स्क्वायर, 1 जा 5 जा. सो हमारा जनरल फॉर्मूला ये बन गया. तो हम सीधा वैल्यूज इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालते जाएंगे. टाइम का वैल्यू क्या हो गया अभी? 2 सेकेंड. 2 का स्क्वायर 4, 4 5 जा 20. टाइम का वैल्यू बिकम 3 नाउ. 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45. टाइम वैल्यू बिकम्स 4 नाउ. 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 80. क्लियर? परफेक्ट. So these are the values what we got. Okay, अभी हम इसी values के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे. Let's plot the graph using these values. So when you plot a graph, this is the position, this is the time. 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And over here, थोड़ा सा बड़ा हो गया. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and this one is 80. It is in meter. So 0 पे कितना है? 0. On 1 it is 5. 5 means somewhere over here. 2 पे कितना हो गया? 20. Like this. 3 पे 45. 3 पे 45. Okay. 4 पे 80. 4 पे हमारा सीधा ग्राफ चला गया 80 पे. So when you join them, you will see that this is a curve. So this is a graph for when an object is moving with uniform acceleration. अभी क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इस ग्राफ से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे 3 सेकेंड पे फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, व्हाट विल डू, वी विल ड्रॉ द टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट. हम इस पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर देंगे. क्लियर? सो हमने जस्ट अ मिनट, टेंजेंट अच्छे से ड्रॉ हो जाए.
फॉर एग्जाम्पल मैंने इसी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, ऐसे जो पास होगा, ओके इस टेंजेंट का स्लोप हमें क्या दे देगा, द वेलोसिटी एट अ पॉइंट, ओके सो वेलोसिटी एट अ पॉइंट कैसे निकालेंगे, द स्लोप ऑफ टेंजेंट passing through a given point, yeah. So this is all about the position time graph. Next we will see velocity time graph. Right class, now let's move to the velocity time graph. So write down the next topic, velocity time graph. We will see the different scenario in velocity time graph. Okay, so write down topic number 2, velocity time graph. Okay, fine. Suppose now this is a body moving with constant velocity 10 meter per second. We will take an example that body is moving with uniform velocity. So the first graph is all about body moving with uniform velocity. Body moving with uniform velocity. So let's see, let's study the position time graph. So this is the time, this is the position. यहाँ पर मैं वेलोसिटी भी बना देता हूँ, तीनों देख लेंगे हम लोग. ओके, when the time is 0, position is also 0, velocity is 10 meter per second initially. After time 1 second, the new position will be 10, but the velocity is uniform, so it will be 10 meter per second only. After 2 seconds, the position will be 20, the velocity will be 10 meter per second. After 3 seconds, the position will be 30, velocity will be 10 meter per second. After 4 seconds, it will be 40, velocity will be 10 meter per second. As velocity is not changing, it is uniform. So when you plot a graph, the time versus velocity, this is 0, this is 10, this is 20, this is 30, this is 40. Clear? If let's talk about over here, oh sorry, यहाँ पर मैंने टाइम लिया है, सो 1 2 3 and 4 seconds. यहाँ पर आ गया 10 20 30 and this is 40. So when you plot the graph for the velocity versus time, you will find out 0 पे कितना है 10, 0 पे velocity 10, 1 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 10 and 4 पे 10. So 2 पे 10, 3 पे 10, 4 पे 10. Join them. So we will find out that will be a straight line. Correct? Very simple. Now see here, we know that velocity is equals to displacement upon time. Displacement upon time. Correct? So what is the displacement? Displacement is equals to velocity into time. Displacement क्या होगा? Velocity into time. Now sometimes the question may asked कि find out करो displacement क्या है from the velocity time graph. Are you ready? तो हम कैसे पता करें? That's the question. If for example, चलो यहाँ पर वेरिएबल ले लेते हैं, that this is v और यहाँ पर टाइम है हमारा t. ओके, तो मुझे पता करना है कि t टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो वेलोसिटी मतलब v, दिस इज द वेलोसिटी ऑन द y एक्सिस राइट, एंड दिस इज द टाइम ऑन द x एक्सिस. जब मैंने वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, सो व्हाट आई विल गेट दिस एरिया, मुझे ये एरिया मिल जाएगा, दिस वन. So velocity time graph is nothing but what? How to calculate displacement from the velocity time graph? By calculating the area under velocity time graph. So displacement is equals to area under velocity time graph. So displacement कैसे मिलेगा? Area under velocity time graph calculate कर लो, आपको displacement मिल जाएगा. So let's calculate for this case जो example हमने लिया है. यहाँ पर वेलोसिटी कितना है 10, टाइम कितना है 4, 10 4 40, तो इन 4 सेकेंड द डिस्प्लेसमेंट इज 40. सो इस तरीके से आपको मिलेगा. क्लियर? कभी भी अगर आपको डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने आए फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जस्ट कैलकुलेट द एरिया अंडर द ग्राफ. ओके फाइन. नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ.
एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ग्राफ में जो लाइन होती है उसकी स्लोप निकाल लो, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा. लेट्स कैलकुलेट द स्लोप. लेट्स टेक एनी 2 पॉइंट्स. ओके, दिस पॉइंट इज 4, 10 and this point is 0, 10. So y2 minus y1, 10 minus 10, 0. x2 minus x1, 4 minus 0, 4. Your answer comes out to be 0 meter per second square. As we know that acceleration will be 0 because the body is moving with uniform velocity. Correct? So this is all about when the body is moving with uniform velocity. Now let's see when what happens when the body is moving with uniform acceleration. Let's talk about uniform acceleration. Body moving with uniform acceleration. Acceleration. Okay, body is moving with uniform acceleration. Suppose यहाँ पर मैंने इसको acceleration ले लिया 10 meter per second square. Okay, for this case we want see the displacement or you can say the position. हम position को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ velocity को study करेंगे. ठीक है? So we will study only the velocity. So for this case we will use the first kinematical equation v is equals to u plus at. हम first kinematical equations की मदद लेंगे. ठीक है, फाइन. सो यहाँ पर initial velocity मैंने मान लिया 0 meter per second. So therefore I will write down v is equals to 0 plus at. So therefore v is equals to at. What is the value of a? 10. So I will write down 10t. Clear? So using this equation we'll plot the first we will fill the table and then we'll plot the graph. Okay, so सबसे पहले टेबल फिल करते हैं. टाइम 0, 10 into 0 will be 0. टाइम 1, 10 into 1, 10. Time becomes 2, 10 to the 20. Similarly this will be 30 and this will be 40. Let's plot the graph now. When you plot the graph, this is time, this is velocity. 0, 1, 2, 3, 4. 10, 20, 30 and 40. 0 पे कितना है? 0. 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40. So when you join them you will find that this will be a straight line. Clear? Okay. अगर मुझे अभी यहाँ पर मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, what will be the displacement in 4 seconds? So what we will do, we'll calculate this area. When you calculate this area, you will get the displacement. ये कौन सा शेप दिख रहा है हमें? Triangle. We know that area of triangle is half into base into height. So half. What is base? 4. What is height? 40. So 4 into 40. 1s are 2s are 40 into 2 80. इसके पहले जब मैंने एग्जाम्पल लिया था तो आपने देखा होगा कि 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट कितना था? 80 मीटर. करेक्ट? तो डिस्प्लेसमेंट में आ गया 80 मीटर. अगर मुझे इसी ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालना है तो हम इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेंगे. सो फॉर द एक्सेलरेशन वी विल फाइंड आउट द स्लोप. टेक एनी 2 पॉइंट्स 4, 40 दिस वन एंड 0, 0. सो 40 minus 0 upon 4 minus 0. So you will see 40 upon 4 1s are 10s are. So 10 meter per second square. So this is velocity time graph. So velocity time graph से हमने क्या स्टडी किया कि अगर मुझे velocity time graph से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम एरिया निकाल लेंगे. अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो हम स्लोप निकाल लेंगे. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, फाइन. नाउ लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स ऑन इट. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सॉल्व द क्वेश्चन नाउ so that you get the clear picture about these things. So the question is, figure shows that the distance time graph of two trains which starts moving simultaneously in the same direction. From graph, find how much ahead of A is B when the motion starts. Second, what is the speed of B? Third, when and where will A catch B? Fourth, what is the difference between the speed of A and B? Fine. So position time graph दी है हमें. This is the graph of A and this is the graph of B. Intersection जहाँ पर हो रहा है
आप देखोगे तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ए ने बी को ओवरटेक किया फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब ए पीछे से आया, ओके, ए पीछे से आया और इस पॉइंट पे ए ने बी को ओवरटेक किया और आगे निकल गया, ठीक है। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मच अहेड ऑफ ए इज बी, बी ए से कितना आगे था जब मोशन स्टार्ट हो रही थी। एज यू कैन सी बी का इनिशियल पोजीशन कितना है जब मोशन स्टार्ट हो रही थी, मतलब टाइम 0 सेकेंड था, तो बी का इनिशियल पोजीशन 100 था, वहीं ए का इनिशियल पोजीशन ओरिजिन था, दैट इज 0। सो बी ए से कितना आगे था, 100 किलोमीटर। सो हमारा फर्स्ट आंसर क्या बना, 100 किलोमीटर। दिस इज अवर फर्स्ट आंसर, ठीक है, फाइन। सेकेंड सब क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी, मुझे बी का स्पीड निकालना है, ठीक है। बी का स्पीड निकालने के लिए मैं एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट ले लूँगा और मैं एक ये पॉइंट ले लूँगा, बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द स्लोप, राइट। इफ़ यू सी दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स, तो इन दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं क्या है हमारा। दिस इज 2,150, ओके, दिस इज 2,150 एंड दिस इज 0,100. So when you solve this, what we'll get? It is slope of line B is equals to y2 minus y1, that is 150 minus 100, x2 minus x1, 2 minus 0, so comes out to be 50 upon 2, that is 25 kilometer per hour. This is the velocity of B, okay. So I will write down that velocity of B is 25 kilometer per hour. Next we'll move the third point, third sub question. What is it? When and where will A catch B? A ने B को कभी कैच किया, at this point, at the time of 2 seconds, और कहाँ पर, at a distance of 150 kilometer. So therefore at t is equals to 2, this is not in second, this is in hour, so therefore I will write down at t is equals to 2 hour and displacement is equals to 150 kilometer, okay, from A से 150 किलोमीटर पे A ने क्या किया, A की इनिशियल पोजीशन से आई एम टॉकिंग अबाउट, A की इनिशियल पोजीशन से 150 किलोमीटर पे उसने B को कैच किया, ठीक है। लेट्स सी नाउ द फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ सब क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी। क्योंकि हमने स्पीड ऑफ बी निकाल दिया है, हम स्पीड ऑफ ए निकालेंगे, बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्पीड ऑफ ए निकालने के लिए एक तो मैंने ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया हमने, दिस इज 0,0। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, स्पीड ऑफ ए इज द स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ए। सो स्लोप के लिए y2 minus y1 upon x2 minus x1, so 150 minus 0, 150 upon 2 minus 0, it is 2, so it comes out to be 75 kilometer per hour. So अगर मुझे डिफरेंस निकालना है, so VA minus VB, that is 75 minus 25, so the difference comes out to be 50 kilometer per hour. Let's do next question. The question is very simple. The speed time graph of a particle moving along a fixed direction is shown in the figure. Find distance traveled by the particle between 0 second to 10 second. Average speed between this interval. Third, the time when the speed was minimum. Fourth, the time when the speed was maximum. ठीक है? So let's start solving the question. The first point, distance traveled by the particle between 0 second to 10 second. So हमें पता है जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे डिस्टेंस निकालना है, हम कैसे निकालते हैं? बाय कैलकुलेटिंग द एरिया। तो ये एरिया कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर डिस्टेंस इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, परफेक्ट। सो वी नो दैट ये जो एरिया है, इफ यू विल सी, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. So what is the formula for the area of triangle? It is half into base into height. What is base? It's 10. What is height? It's 12. So I'll write down, it is 10 into 12. 1s are 5s are 12 5s are 60. So 60 meter is the answer. First one. Let's move to the second one. The second sub question.
average speed between this interval. We know that the formula for the average speed, the total distance upon total time. Total distance covered 60 meter and the total time कितने टाइम में कवर हुआ 10 seconds में. So get cancelled. So हमें कितना आंसर आया 6 meter per second. Let's go for the third point. In the third sub question, the time when the speed was minimum. Speed कभी minimum था. As you can see, speed minimum 0 seconds पे है and 10 seconds पे है. Okay. So speed is minimum at 0 and 10 second. ठीक है. The fourth point, the time when the speed was maximum. कौन से टाइम पे speed maximum था? At this point कितना था? 12 meter per second. Speed was maximum at t is equals to 5 seconds. Clear? So this is the solution of problem. Okay class, so this is the question. Next question we have, it's very interesting question. First we will try to understand the question very carefully. So the velocity of a train increases at a constant rate alpha from 0 to v and then remains constant for some time interval and then finally decreases to 0 at a constant rate beta. If the total distance covered by the particle be x, then show that total time taken will be. This is the equation. We want to prove this equation. ठीक है. So before solving the sum, I want you guys to plot a graph first, क्योंकि ग्राफ हमारा काम आसान कर देगा काफ़ी से. Okay? ग्राफ हमारा काफ़ी काम आसान कर देगा. Now see here, the velocity of a train increases at a constant rate alpha. What is alpha over here? Alpha is the acceleration from 0 to v. So therefore, I will write down there is an acceleration from 0 to v. So this is v. This point is origin. Okay. और उसके बाद क्या है? And then remains constant for some interval. So then velocity will remains constant for some interval and then finally decreases to 0 at a constant rate beta. और फिर बाद में क्या हो गया? 0 पे आ गया. ओके. यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना था? अल्फा. यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना है? रिटार्डेशन है वहाँ पर बीटा. If the total distance covered by the particle be x, पार्टिकल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? x. Then show that this is the time taken. Fine. तो सबसे पहले नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर कुछ. Suppose this is the time interval t1, this is the time interval t2 और यहाँ पर ये t. Clear? मुझे यही t पता लगाना है. What is the total time taken? Fine. So this coordinates, इसकी coordinates क्या हो गई? t1, v. इसकी coordinates क्या हो गई? t2, v. इस पॉइंट्स को भी नेमिंग कर देते हैं. That this is a, this is b, this is c, this is d and this is e. The value of this coordinate is t1, 0. The value of this coordinate t2, 0. The value of this coordinate t, 0 and the origin 0, 0. सबके coordinates बना दिए और points बना दिए. Fine. I want you to calculate the slope of line AO. अगर हम AO की स्लोप कैलकुलेट करेंगे, द फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. द वैल्यू ऑफ y2 v, द वैल्यू ऑफ y1 0, द वैल्यू ऑफ x2 t, द वैल्यू ऑफ t1, द वैल्यू ऑफ x1 0. So it comes out to be v upon t1. Slope of velocity, this is a velocity time graph. This is not distance time. Slope of velocity time graph. Slope of velocity time graph क्या देगा हमें? Acceleration. So यहाँ पर acceleration कितनी थी? अल्फा. So therefore I will write down t1 is equals to v upon alpha. Correct? Next we'll find out slope of line BC. Again the same formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. The value of y2, यहाँ पर इसको put कर देते हैं x2, y2 and this one is x1, y1. So y2 v minus 0 and x2 minus x1, x2 value t2 minus t. So t2 minus t is equals to v upon t2 minus t, which is equals to minus beta. Minus why? Because it is a retardation. Clear? So therefore minus v upon beta is equals to t2 minus t. So it comes out to be t2 is equals to
टी माइनस वी अपॉन बीटा, टी को यहाँ पर लेके चले गए, सो टी माइनस वी अपॉन बीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ T2. फाइन, नाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन कैसे मिलेगा? फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बाय कैलकुलेटिंग द एरिया. तो ये पूरा एरिया मुझे कैलकुलेट करना है. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने टोटल x, if the total distance covered by the particle be x. Okay, so area भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. area of trapezium, what is the area of trapezium? Sum of parallel sides into height into half. So half into sum of parallel sides AB plus OC. So I will write down AB plus OC into what is height? AE. ठीक है. So is equals to half. What is the value of AB? AB is nothing but ED. करेक्ट, मुझे AD का वैल्यू चाहिए. सी वी नो दैट OD इज T2, OE इज T1. सो व्हाट इज ED? T2 माइनस T1. सो T2 माइनस T1, दिस इज AB. व्हाट इज OC? OC इज T इंटू AE. AE इज V. सो V मैंने पुट कर दिया. सिंपल, फाइन. सो इज इक्वल्स टू हाफ द वैल्यू ऑफ T2. What is the value of T2? T minus V by beta. So I will write down T minus V by beta minus the value of T1. What is the value of T1? V upon alpha. So V upon alpha plus T, this one, into V x. 2 को यहाँ पर भेज दो, 2x. V को भी यहाँ पर भेज दो, V. T plus T becomes 2T minus V upon beta minus V upon alpha. Correct? इस V upon beta and V upon alpha को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो. So therefore 2T comes out to be 2x upon V plus V upon alpha plus V upon beta. 2 को वहाँ पर भेज देंगे और यहाँ से V कॉमन ले लेंगे. So therefore our final equation comes out to be T is equals to x by V plus V upon 2, 1 upon alpha plus 1 upon beta. Hence proved. This is the equation. Now we will see analysis nature of motion from various graph. Because कभी कभी क्या होता है ना, जेई और नीट में क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं कि आपको ग्राफ दे दिया होगा, आपको पहचानना है कि ये किस टाइप की मोशन का ग्राफ है. तो हम इसको डिटेल एनालिसिस करते हैं सो दैट आपको एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चंस आए तो सो दैट यू आर एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके फाइन. सो यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ्स बना दिए, हम एक एक करके इन सारी ग्राफ्स की मोशंस पढ़ते रहेंगे. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ग्राफ. फर्स्ट ग्राफ में अगर आप देखोगे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टाइम एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस. ओके, अगर एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस डिस्टेंस टाइम कर रहा है, सो यू विल सी इन द फर्स्ट ग्राफ टाइम बढ़ते जा रहा है बट आपकी डिस्टेंस नहीं बढ़ती जा रही, आपकी डिस्टेंस उतनी ही है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एज अ टाइम passes on but the distance is not increases तो क्या होगा? We will say that that body is said to be in the rest. तो ये ग्राफ किसका था? जब आपका बॉडी क्या है? रेस्ट पे है. क्लियर? ओके, सेकेंड ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं. इन द सेकेंड ग्राफ यू विल सी दैट टाइम एज अ टाइम passes distance also increases linearly. Linearly means there is a straight line. Okay, जब ये कंडीशन होता है तो हमने पढ़ा हुआ है ये कभी होता है when a body is moving with uniform velocity. तो यहाँ पर आपका बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है. करेक्ट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नेक्स्ट थर्ड ग्राफ. इन द थर्ड ग्राफ यू विल सी देयर इज अ कर्व. और हमने स्टडी किया है कि कर्व कभी आता है जब बॉडी कौन से मोशन में होती है? जब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में होती है. आपको दो टाइप के कर्व्स मिलेंगे एज यू कैन सी इन द सी एंड डी. बॉडी चाहे एक्सेलरेट होगा या फिर बॉडी डीएक्सेलरेट होगा, तो दोनों केसेस में आपको कर्व मिलेगा. तो हमें पहचाना है यहाँ पर कौन से टाइप की मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है या डीएक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है. सो हमें कैसे मालूम पड़ेगा व्हाट इज एक्सेलरेटेड मोशन? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं. एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है टाइम के साथ, तो हम ऐसी टाइप की मोशंस को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया है कि अगर मुझे इस ग्राफ से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मुझे अगर पार्टिकल की स्पीड निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट और फिर उस टेंजेंट का स्लोप निकाल दो. फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट पे मुझे पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा. सपोज मैंने यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस. ये मेरा टेंजेंट है.
तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, एज यू कैन सी दिस इज एंगल थीटा। ओके, तो यहाँ पर ये एंगल थीटा है। अभी जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोल दूँ, थोड़ा टाइम बीत गया और मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे स्पीड कितना है, तो मैं वहाँ से एक टेंजेंट बना दूंगा लाइक दिस इज दैट टेंजेंट इज पासिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। सो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा। Okay, and we know that the formula for the slope is tan theta. Okay, तो for this point जब टाइम t1 है हमारा, तब ये हमारा स्लोप हो जाएगा tan theta, और जब टाइम t2 होगा स्लोप इज इक्वल्स टू tan अल्फा। करेक्ट? तो यहाँ पर इफ यू विल सी थीटा बढ़ा हुआ है या अल्फा बढ़ा हुआ, एज वी कैन सी दैट थीटा इज लेस देन अल्फा। मतलब क्या हुआ, अल्फा, यू कैन से दैट अल्फा इज ग्रेटर देन थीटा। अगर अल्फा थीटा से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, टाइम बीत रहा है, टाइम चल रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है। कैसे मालूम पड़ा, स्लोप बढ़ गया। वी नो दैट वेलोसिटी इज नथिंग बट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, हमने देखा कि t1 टाइम पे जो स्लोप बन रहा है और t2 टाइम पे जो स्लोप बन रहा है, ओके, t2 पे स्लोप इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑन t1। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, t2 पे ज्यादा स्पीड रही होगी पार्टिकल की एज कंपेयर टू t1। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एज द टाइम प्रोसीड, टाइम चल रहा है, पार्टिकल क्या कर रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहा है। पार्टिकल अगर अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन ग्राफ। ये जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये डीएक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीएक्सेलरेटेड मोशन को भी समझते हैं कि जैसे टाइम पास हो रहा है, कैसे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। सपोज एट दिस पॉइंट एट t1 मुझे यहाँ पर इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट से क्या करूँगा, एक टेंजेंट बना दूंगा। सपोज दिस इज अ टेंजेंट पासिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये जो टेंजेंट है, लेट्स से ये एंगल अल्फा बना रहा है। फिर अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूंगा, तो इस पॉइंट पे भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा लाइक दिस व्हेन द टाइम इज t2। तो ये जो टेंजेंट है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। एज यू कैन सी अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा यहाँ पर बीटा से ज्यादा है। अगर अल्फा बीटा से ज्यादा है, सो कैन आई से tan अल्फा इज ग्रेटर देन tan बीटा। सो कैन आई से स्लोप एट 1 मीन्स टाइम 1 इज ग्रेटर देन द स्लोप व्हेन द टाइम इज 2 t2। क्लियर? तो यहाँ पर स्लोप बड़ा है और यहाँ पर स्लोप छोटा है। सो कैन आई से दैट वेलोसिटी एट फर्स्ट पोजिशन इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी एट सेकेंड पोजिशन। ओके, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो भी वेलोसिटी थी वो सेकंड पोजीशन से क्या है, ज्यादा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी डिक्रीज हुआ है एज द टाइम प्रोसीड्स। टाइम जैसे से बीतते जा रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से इसको कौन सा मोशन बोलेंगे, हम डीएक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दैट दिस इज डीएक्सेलरेटेड मोशन। सो ये आपको याद रखना है। ओके, याद भी नहीं रखोगे तो आपको ग्राफ से समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ द ग्राफ इज वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। दिस नेक्स्ट वन क्या बता रहा है, यहाँ पर ये चीजें समझनी है आपको, एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर। एज यू कैन सी एक सर्टेन टाइम पे बिगर कोई टाइम चले हुए, मीन्स व्हाट, टाइम यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। एज यू कैन सी बिगर टाइम बढ़े हुए आपने बहुत बड़ी डिस्टेंस कवर कर ली है। इज दैट पॉसिबल? बिगर टाइम बीते आप क्या बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो, मतलब टाइम चल ही नहीं रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो सच टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट हैपन। ऐसी कभी भी ग्राफ आपको मिलेगी तो आपको बताना ऐसी टाइप की मोशन कभी होती ही नहीं है। ओके, क्योंकि आपको किसी भी टाइप की मोशन में कुछ ना कुछ टाइम जरूर होगा। ओके, टाइम एलेप्स होगा, मतलब कुछ ना कुछ टाइम बीतेगा। ओके, कोई भी टाइप की मोशन में। अब नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं, एफ वाली ग्राफ पे। एज यू कैन सी यहाँ पर टाइम जैसे से चल रहा है, आपकी डिस्टेंस कम हो रही है। इज दैट पॉसिबल?
टाइम जैसे से चल रहा है आपकी डिस्टेंस कम हो रही है, मतलब फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाता हूँ, ओके, तो मेरा डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ा या कम हो? ऑब्वियसली बढ़ा। तो आपका जो डिस्टेंस है वो टाइम के कंपैरिजन में, मतलब जैसे से टाइम बढ़ते जाएगा आपका डिस्टेंस बढ़ सकता है या फिर उतना ही रह सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। दैट्स द रूल, ओके। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा आपका। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे से टाइम बीतते जाएगा, टाइम चलते जाएगा, आपका डिस्टेंस बढ़ेगा या फिर उतना का उतना रहेगा, लेकिन कम नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर? सो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। सो this is the various graph we studied about the distance time. Now we will study about the displacement time graph. हम देखेंगे displacement time graph, almost काफ़ी चीज़ें similar है as compared to distance time graph. बस सिर्फ एक ही ग्राफ में थोड़ा फर्क है, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? So displacement time graph में as you see the first graph, as the time proceeds, time जैसे से बीतते जा रहा है, if you will see that there is no change in the displacement उतनी की उतनी है, so such type of graph is said when the body is said to be at rest, जैसा हमने distance time में देखा था, correct? Okay, next graph displacement time में as the time increases the displacement also increases, means what? Body is moving with uniform velocity because जो displacement increase हुआ है वो linearly increase हुआ है, body is moving with uniform velocity. In the third graph, as we have seen in the distance time, that this is the accelerated motion graph because the velocity, as the time proceeds, the velocity also increases with time. Okay, so this type of motion is accelerated motion. This type of motion is known as accelerated motion. Next type of graph, as we have seen, as the time proceeds, in this case, the velocity decreases with the time. Okay. So such type of graph is nothing but decelerated motion because time बढ़ते जाएगा, velocity क्या होगा? कम होते जाएगा. So decelerated motion, decelerated motion. Okay. Next, fifth graph. अभी fifth graph, यही graph थोड़ा सा अलग है as compared to distance time graph. हमने distance time graph में देखा था कि such type of graph is not possible over there. लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ऐसी ग्राफ पॉसिबल है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर हो क्या रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये स्ट्रेट लाइन है, इससे समझ में आता है कि बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इतना समझ में आता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइव एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर राइट नाउ, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, so this is the positive x-axis and that side is the negative x-axis. तो अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ? पॉजिटिव x-axis पे खड़ा हूँ, मतलब मेरी ये पोजीशन ये है। अभी टाइम स्टार्ट होगा, मेरी मोशन स्टार्ट होगी, ठीक है। मेरी राइट नाउ पोजीशन अभी ये है। अब मैं कहाँ पर आ गया? ओरिजिन पे आ गया। जैसे ही मैं ओरिजिन पे आ गया तो मेरा टाइम के साथ ये पोजीशन बन गया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0, एज यू कैन से, क्योंकि इनिशियली क्या था मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर था, ओके, मैं यहाँ पर गया, मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की, ओके। अभी टाइम जैसे से चलते जाएगा, अब मैंने यहाँ से मोशन अपनी स्टार्ट करी, मतलब यहाँ से मैं टाइम को मानना चालू कर रहा हूँ, मतलब टाइम बिकम्स 1 सेकेंड फ्रॉम राइट नाउ ओवर हियर, ओके। तो जैसे से टाइम जा रहा है मैं वापस से ओरिजिन पे आ गया, मतलब मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया था, 0 से 1, 1 से वापस से 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। अब मैं क्या करूंगा? आई विल मूव टू द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैं क्या करूंगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ गया। तो जब मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आऊंगा तो यहाँ पर देखो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई? अभी नेगेटिव हो गई। क्लियर? अरे गेटिंग? डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कभी होता है? जब आपने अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करके दूसरी डायरेक्शन में चले गए। नहीं समझा है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ दिस इज अ लाइन ग्राफ, दिस इज द ओरिजिन, दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज -10, दिस इज -20। फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर ओवर हियर, ओके। आप कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके 20 पे आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 20 हो गई, ठीक है। तो समझ लो आपकी डिस्प्लेसमेंट 20 है। अभी हम एक मोशन को स्टडी करेंगे जहाँ पर आप इस डायरेक्शन में आओगे। क्लियर? आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी? 0 थी। अभी आप इस डायरेक्शन में आना चालू किए 20 के साथ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ से मैं टाइम चालू करूँगा, अपने स्टॉप वॉच में टाइम चालू करूँगा। तो इसके लिए आपका टाइम 0 सेकेंड पे आपकी पोजीशन कितनी थी? 20 थी। डिस्प्लेसमेंट कितना था? 20 था।
लेकिन अभी आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड आओगे तो आप अपनी वापस से यहाँ पर आओगे, क्लियर, आप यहाँ पर आ गए मतलब आप अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। सो फॉर दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 0, क्लियर, फॉर सर्टेन टाइम। उसके बाद आपने अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करके लेफ्ट साइड आ गए, करेक्ट, आप इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करके लेफ्ट साइड आ गए, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट अभी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट दिस ग्राफ इंडिकेट, दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट यहां पर आप अपनी इनिशियल पोजीशन को क्रॉस करके अब दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ये ग्राफ हमें ये बताएगा, लेकिन कौन सी वेलोसिटी के साथ, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी हो रही है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्लियर। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल ग्राफ, क्लियर। नाउ वी विल सी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ओके, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी। यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लिए। फर्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंट एज द टाइम प्रोसीड्स द वेलोसिटी ऑफ द ग्राफ will remain constant, okay, so velocity यहाँ पर अगर देखो, okay class, let's do now velocity time graph। मैंने यहाँ पर कुछ ग्राफ बना दिया है, हमें बताना है इन ग्राफ को देख के कि बॉडी किस टाइप की मोशन बना रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफ। पहले ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे से टाइम इंक्रीज हो रहा है, यू विल सी दैट वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रहा है, सो सच टाइप ऑफ ग्राफ इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी कौन सी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेट्स मूव टू द सेकेंड ग्राफ। इन द सेकेंड ग्राफ यू विल सी as the time increases, the velocity also increases linearly, okay, and we know that if the time increases and the velocity also increases with respect to time linearly, so such type of graph is known as accelerated motion. Such type of motion is known as accelerated motion. Which type of accelerated motion? Uniform, means acceleration बदलेगा नहीं, acceleration will remain constant. Acceleration क्या होगा, constant होगा, okay, fine. Now next graph, the third one, as you can see, first of all, to solve this graph, we need to know that acceleration is slope of velocity time graph. Acceleration पूरा डिपेंड करता है स्लोप पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, अगर स्लोप कम होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। लेट्स सी हियर फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट एट द टाइम t1, यहाँ से अगर मैं टेंजेंट बना दूंगा लाइक दिस, ओके, दिस इज द टेंजेंट, थोड़ा सा रब कर देते हैं इसको, या इफ यू विल सी दिस टेंजेंट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ओके। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अगर मुझे टाइम t2 पे बनाना हो, दिस इज टाइम t2, ठीक है, तो टाइम t2 पे मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से एक टेंजेंट बना देंगे लाइक दिस, ये मैंने वहाँ से एक टेंजेंट बना दिया लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर टेंजेंट को एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर देखोगे अल्फा इज योर एंगल। वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्फा और थीटा में से कौन बड़ा है? ऑब्वियसली अल्फा इज ग्रेटर दैन थीटा, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन tan अल्फा इज ग्रेटर दैन tan थीटा, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन स्लोप अल्फा कभी बन रहा था जब टाइम था हमारा t2, so slope 2 is greater than slope theta का भी बन रहा था जब टाइम था t1, slope 1, so therefore I will write down second acceleration means acceleration at time t2 is greater than the acceleration at time t1। इसका मतलब क्या हो रहा है, this graph indicates that acceleration change हो रहा है हर पॉइंट पे। कैसे चेंज हो रहा है, acceleration हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। so I will write down over here this graph represents increasing acceleration, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। नेक्स्ट वी विल सी द डी ग्राफ। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब टाइम के साथ टाइम इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। कैसे, लेट्स सी। तो चलो यहाँ पर आई विल से एट टाइम t1, यहाँ से हम एक स्लोप बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे, यू कैन से एक टेंजेंट बनाएंगे। उस टेंजेंट का
जो एंगल होगा विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट्स से दिस इज अल्फा, ठीक है। फिर एट टाइम t2 यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएंगे लाइक दिस, उसका हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल कितना होगा, बीटा। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम वी नो दैट अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, tan अल्फा tan बीटा से बड़ा हो जाएगा। कैन आई से स्लोप अल्फा का टाइम क्या था t1, तो स्लोप एट 1 इज ग्रेटर देन द स्लोप एट 2, सो दैटफॉर आई विल राइट डाउन एक्सेलरेशन इज एट 1 इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन एट 2। मतलब टाइम के साथ एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ग्राफ। क्लियर? Okay, let's move to the next part, the last graph, that is E. Okay, in this graph as you can see there is a line. If there is a line, we know that this is the uniform acceleration graph, but यहाँ पर टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, as you can see from the graph। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो हमें पता ही एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, डीएक्सेलरेशन है, और यू कैन से रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन ग्राफ। डीएक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। नाउ यू नीड टू स्टडी ये ग्राफ एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। सी हियर व्हाट हैपेंस, यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली। नंबर लाइन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस। ओके, दिस इज ओरिजिन 10 20 30, दिस इज -10 एंड सो ऑन। ओके, नाउ सी हियर अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, कंटिन्यूस बॉडी में डीएक्सेलरेशन हो रहा है, कंटिन्यूस बॉडी में क्या हो रहा है, डीएक्सेलरेशन हो रहा है। सो द बॉडी इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। डीएक्सेलरेशन होने की वजह से बॉडी की स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सपोज ये पॉइंट पे उसकी स्पीड 0 हो गई, उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, और स्पीड 0 होने के बाद इस पॉइंट पे बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में आना चालू कर दिया, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब उसकी स्पीड 0 हुई तो वो ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जब बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में आना चालू हो गया, एज यू कैन सी वेलोसिटी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, बॉडी ने अपनी डायरेक्शन बदल दी। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ यू थ्रो अ बॉल इन द अपर डायरेक्शन, बॉल ऊपर जाएगा, कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी, और ये पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। सी, बॉल की वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई। उसके बाद बॉल ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी और नीचे आ रहा है, तो वो ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा कि बॉल ने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी और नीचे आते वक्त उसकी स्पीड कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ओके, सो दिस ऑल द ग्राफ अबाउट वेलोसिटी टाइम। Class, now we will see speed time graph and acceleration time graph. Last two graphs we will study. Okay class, now we will study speed time graph and the acceleration time graph. Last two graphs. Okay, रह गया हमारे पास पढ़ने के लिए। So सबसे पहले हम speed time graph देख लेते हैं, उसके बाद हम acceleration time graph देखेंगे। Okay, so let's talk about the speed time graph. Okay, speed time graph को समझते कि मैंने यहाँ पर जो बनाया वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट ग्राफ आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक बॉल ले लो, यहाँ पर आपने उसको ऊपर फेंका है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। ओके, इफ यू थ्रो अ बॉल इन द अपर डायरेक्शन विथ सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, ओके, तो ये क्या होगा, एट फाइनल पोजीशन एक सर्टेन हाइट पे आके इस बॉल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, बिकॉज ड्यूरिंग दिस इंटरवल there is uniform retardation on the ball, uniform retardation। okay, तो कुछ टाइम में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 0। एज यू कैन सी इनिशियली इसकी स्पीड थी, कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई, 0। अभी क्या होगा, ये बॉल वापस से नीचे आएगा, दिस बॉल विल कम, यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, लेकिन नीचे आते आते तक, नीचे आने तक उसने अच्छी खासी स्पीड गेन कर ली होगी। सो वापस से सीयर इनिशियल स्पीड कितनी थी उसकी, 0, और वापस से उसने कुछ टाइम में कुछ अच्छी खासी स्पीड गेन कर ली। सो दिस टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंट दिस ग्राफ। क्लियर? आपको सेकेंड ग्राफ का भी मैं एग्जांपल देता हूं। इन द सेकेंड ग्राफ अभी हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे सीयर। अभी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन द सेकेंड ग्राफ दिस इज द बॉल एंड दिस इज द फ्लोर। ओके, बॉल की इनिशियल स्पीड कितनी है, 0। मैंने इसको ऐसे पकड़ के जस्ट छोड़ दूंगा अभी मैं, ठीक है। सो बॉल विल फेल डाउन,
यहाँ तक आते आते उसके पास एक अच्छी खासी स्पीड हो चुकी होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन v. सो एज यू कैन सी एज द टाइम प्रोसीड बॉल ने एक अच्छी खासी स्पीड गेन कर ली है, ओके, इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. अभी बॉल क्या होगा, यहाँ से रिबाउंड होगा और वापस से ये ऊपर की तरफ जाएगा. फॉर एग्जांपल पहले ए से बी पे आया, फिर बी से सी पे आया, ए से बी तक आया, अब रिबाउंड होके ऊपर गया बी से सी. अच्छा, जब वो ऊपर जा रहा है, ओके, ऊपर जाते वक्त क्या होगा, उस बॉल में रिटार्डेशन होगी, मतलब उसकी स्पीड कम होगी. तो इसके लिए इस पॉइंट के बाद ये पॉइंट पे बाउंस हुआ, ये पॉइंट पे बॉल बाउंस हुआ, इस पॉइंट के बाद एज यू कैन सी उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, क्योंकि वो रिबाउंड हो गया मतलब उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर दी और अभी ऊपर की तरफ जाएगा, बी से सी तक की मोशन बनाएगा, सी पे आकर रुक जाएगा. क्लियर. तो बी से सी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब बॉल हर मूवमेंट पे अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बदल रहा है. सॉरी, बॉल अपनी हर मूवमेंट पे क्या कर रहा है, अपनी वेलोसिटी को बदल रहा है. ठीक है, और इस पॉइंट पे आते आते उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. तो इसके लिए यहाँ पर मैंने बोल दिया उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0. क्लियर. ओके, सो ये दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ मोशन. नाउ वी विल सी द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ. इन द फर्स्ट ग्राफ इफ यू विल सी as the time proceed acceleration is remains constant. So such type of graph represents uniform acceleration graph. ऐसी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. In this type of graph, second one, as you can see, as the time increases the acceleration also increases linearly. So such type of graph is known as increasing acceleration graph. Increasing acceleration. Clear. So this all graph we have studied. Okay, और इन ग्राफ से हम कैसे मोशन बता सकते हैं ये भी हमने पढ़ा. So I hope now you will able to solve the questions in JEE and NEET on the graph.